ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦିଆର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସର ଅବଦାନ? ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଯାଇନଥିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଭୂମିକା ନେଲା? ଆଜି ବହୁଜନ ସମାଜ ଯେଉଁ ରାଜା ପରି ବଞ୍ଚୁଛି, ଏ ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସର ସଂଘର୍ଷ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଲଣ୍ଡନରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଅଛୁତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। 1930 ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ବାଇକଟ୍ କଲା। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଚୁପଚାପ ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଉପସ୍ଥିତି। ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁତ କରି ରଖିଥିଲେ SC ST OBCକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଶିଗଲା ଚଡ଼କ, ଛାନିଆ ପଶିଗଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ଅଛୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କହିଲେ, ଆମେ ଦାସର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜାଦି ନେଇ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁଜନ ସମାଜ ସେ ସମୟରେ ଅଛୁତ, ସେ ସମୟରେ ଡବଲ ଗୁଲାମୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଡବଲ ଗୁଲାମର ଶିକାର ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୁଲାମ ମାନେ ଆମେ ଦାସର ଦାସ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା ଓ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଇଏ ପତା ଚାଲିଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଥିବା ମୂଳ ନିବାସୀର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କ'ଣ, କେତେ ଦୁଃଖ ଓ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବର୍ଣ୍ଣର ଘରେ କାମ କରି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଇଁଠା ଭାତ ମିଳୁଥିଲା, ବେଗାରୀ ଖଟଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଚାଲିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏ କଥା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଦେଲା। ରାଜ ପରିବାରରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ୟାଲେସ ହାଲ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଅମାନବୀୟତା ଭାରତବର୍ଷରେ ଡୁବି ରହିଛି। ସେଇଦିନ ଜାଣିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯେ ଭାରତରେ ଅଛୁତକୁ, ଶୂଦ୍ରକୁ କେଉଁ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଅଛୁତ ନିଜେ ନିଜର ନେତା ବାଛିପାରିବୁ। ଯଦି ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ନ ମିଳେ, ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ନେତା କେବେ ବି ଅଛୁତର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାବା ସାହେବ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସବର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଅଛୁତର, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ OBCର ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ନାହିଁ ବା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ପାଦ ତଳେ ଦବେଇ ରଖିବା, ବେଗାରୀ ଖଟେଇବା, ଶୂଦ୍ରକୁ ଅପମାନିତ ଜୀବନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଦିନ ରାତି ଖଟେଇ ପଇସା ନ ଦେଇ ମୁହଁରେ ମୁତିବା, ଉଲଗ୍ନ କରି ବୁଲେଇବା, ରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡା କରି ଚଲେଇବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ କହୁଥିଲେ, ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ନେତା କେବେ ବି ଅଛୁତ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କରିନାହାନ୍ତି, କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଥର ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛୁତ ସମାଜର ଆୱାଜ ଲଣ୍ଡନ ରାଜ ଦରବାରରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଜାଣିଲା ବାର୍ତ୍ତା। ଲଣ୍ଡନରେ ଯେକୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ମିନ୍ସ ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ସେଦିନ ରୁଷିଆ ଜାଣିଲା, ସେଦିନ ଜର୍ମାନ ଜାଣିଲା, ସେଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାଣିଲା, ସେଦିନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଜାଣିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ଭାରତର ସମଗ୍ର ଉତ୍ଥାନ ଚାହାନ୍ତି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ଦରବାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାମସେ ମାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡର ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା, ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ,
गोटे मनीष छुआ को एत अत्याचार करा जाए भारत वर्ष रे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये घटना घटिला परे गांधी एंड कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर को घोर विरोध कले वो डॉक्टर अंबेडकर को जगह जगह अपमानित कले कुशपुतलिका दाह कले एवं देशद्रोही कहले एवं तांकु षड्यंत्र शिकार होगा रणनीति कले किंतु बाबा साहेब ही थिले से कहार षड्यंत्र शिकार नथिले द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी को छनका पशिगला तेणु द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से फटाफट चली गले कहा को विरोध करने बाबा साहेब अंबेडकर को विरोध करने वो अछूत को अधिकार न देवाई वकालत कले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे गांधी एक सूत्र थिला कि भारत वर्ष रे अछूत को सामाजिक अधिकार दिया जीव ना राजनीतिक अधिकार दिया जीव ना अर्थनैतिक अधिकार दिया जीव ना हिंदू वर्ण व्यवस्था रे अछूत्र जगह जोठी ताकू सैठी ही रखा जाओ अर्थात गोटे पट अछूत को अधिकार न देवा जड़े नेतार लड़ई थिला बेले आउ गोटे पट अछूत को अधिकार देवा निजर जीवन को बाजी लगे प्रस्तुत थे बाबा साहेब अंबेडकर तेणुक आज बाबा साहेब अंबेडकर को मसीहा कहा जाए ये बाबा साहेब अंबेडकर को भाग्य विधाता कहा जाए 1931 मसीहा राम से मैकडलान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब का गर्जन 85 भाग लोगों को अधिकार ब्रिटिश राज बाबा साहेब के कथा को मानी गले एवं ब्रिटिश राज बाबा साहेब अंबेडकर को पृथक निर्वाचन देले वह डुअल सिटीजनशिप दे देले से दिन भाग्य बदली जाइथिला भारत रही बहुजन समाज आज जदि डुअल सिटीजनशिप और पृथक निर्वाचन था बहुजन समाज केबेठु भारत राजा बनी था सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार इकोनॉमिक आजादी मिल सारी था किंतु गांधी छड़ई नेले इमीडिएट भारत को आसिले एवं बहुजन समाज को अधिकार न मिलू कही से अनशन रे बसिले पुना पैक्ट साइन 1932 आरोगड़ा जेल बहुजन समाज रो उदयमान सूर्य को ही डुबे देले पुणी अंधार को चली गले बहुजन समाज SC ST OBC रो भविष्य बर्बाद कर दिया गला ना पृथक निर्वाचन मिलला ना डुअल सिटीजनशिप मिलला मात्र ये गोटे मामूली रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन सिर्फ 2% सरकारी जॉब रे मिलला आ बाकी कोठी नहीं आउ 98% देशर संपत्ति सवर्ण मान को आज पर्यंत एंजॉय करने को दूची तेणु कह जाए RSS ही कांग्रेस ही RSS जननी कांग्रेस आउ RSS बीजेपी जननी अर्थात ए माने गोटे परिवार केबे भी अछूत्र मुक्ति देवे तेणु राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाबा साहेब कहते मत पृथक निर्वाचन ये दरकार कारण सवर्ण हिंदू नेता केबे भी अछूत्र रक्षा करिबो नाही करि नाहंती करिवे नाही करिवार संभावना भी नहीं 1950 रु आज जाए आपण मन देखिले बेस अछूत ही रहीगला SC ST OBC से दुख आ दरिद्र अवस्था ही रहीगले रिजर्वेशन बाबा साहेब रो आवश्यक नथिला बाबा साहेब रिजर्वेशन मागु नथिले षड्यंत्र करी रिजर्वेशन दिया जाइछि आउ सेटा भी सिर्फ 2% सरकारी चाकरी रे टोटल भारत रो सरकार चाकरी रो रोजगार केवल 2% आउ 98% सरकारी नहीं केते बड़ धोखा तेणु बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लिखिबार अधिकार जो दिन मिलगला आर्टिकल 340 OBC को खतरनाक अधिकार देले
आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट को खतरनाक अधिकार देले। आर्टिकल 342 आदिवासी को अधिकार देले। जो दिन एससी एसटी ओबीसी आर्टिकल 340 आर्टिकल 341 एंड 342 को प्रांजल भावे बुझीजे भारत वर्ष में भूचाल आसीज। ये जो 15% लोक आज निजक इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटालिस्ट नेशनल पार्टी नेशनल लीडर कहते फुस जीव। कारण अधिक भोट वाला पार्टी ना कांग्रेस ना बीजेपी, ये माने सिर्फ 15% लोकर पार्टी। जो दिन 85% लोकर पार्टी बहुजन समाज जानीदेव एमानकर खेल खत्म हम। आर्टिकल 340 341 342 समस्त एससी एसटी ओबीसी को अध्ययन करिवार आवश्यक। तेबे जाई आपण आपणकर अधिकार पाई परिबे और निजर इतिहास जानिबे। जो दिन आपण मान निजर इतिहास जानीदेवे भारत इक्वालिटी एस्टाब्लीश हो। बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष आज भी आमको बहुत याद आसूची। केते मेहनत करी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इवन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बाबा साहेब अटेंड करते 1932 रे। आउ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी अधिकार पाई लड़ाई करते। ओबीसी बुझी पारा ना 1990 तार अधिकार नेला। बाबा साहेब कहते पार्लियामेंट्री डिबेट रे आर्टिकल 340 रो वास्तव तत्व जो दिन ओबीसी शिक्षित हम से दिन जानव तार हक अधिकार मागिब। पार्लियामेंट सभा बाबा साहेब अम्बेडकर ओबीसी लीडर मानू अनेक बार बुझेगा प्रयास करते किंतु अज्ञतार कारण जो आर्टिकल 340 रो विषय रे ओबीसी समाज रे जाउथवा नेता माने जानी पारि नथिले एवं मनुवाद रो इंद्रजाल रे फसीगले। से इंद्रजाल रू मुकलिया 1990 हेला मंडल कमिशन लागू हेला। बीपी सिंह गवर्नमेंट आसिले, कांसीराम साहब लड़िले, राजरास्ता को आसिले। आओ ओबीसी रिजर्वेशन आसिला। सालुट मारिवा कथा बाबा साहेब अम्बेडकर केते दूरदृष्टि थेला। आज ही न हेले काली की ओबीसी तार अधिकार मागिब। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट महामहिम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय आज राय दे सारी जी प्राइवेट सेक्टर रे भी रिजर्वेशन लागू हम। संविधान यही कथा कहूँ। तेणु संविधान पढ़ंतु, संविधान को जानतु। वो भारत मूल निवासी भारत राजा बनंतु। आर्टिकल 14 को इम्प्लीमेंट करा जीवो। इक्वालिटी अणा जाओ। वो भारत पृथ्वी नंबर 1 राष्ट्र बनू। आम समस्ते इक्वाल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एंड सवर्ण समस्ते इक्वाल। कहीं ऊंच नहीं कहीं नीच नहीं, ये संविधान कहूँ। तेणु संविधान को बंचेवा आम समस्त प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी संविधान को विरोध करे भाव से देश विरोधी। आज संविधान जो समग्र भारत यूनाइटेड हो रही। यदि संविधान बदल दिया जाए भारत खंड खंड हम। तेणु संविधान रो सुरक्षा देवा समस्त दायित्व। जेते भी एजुकेटिव लोक संविधान को नहीं शपथ करुछंती और नौकरी खंडे पाउछंती, प्रथमे तांको दायित्व संविधान प्रति दायित्ववान हेबा दरकार। किंतु बड़ा दुख लगे आज ऑफिसर संविधान प्रति दायित्ववान न होई नेता प्रति दायित्ववान होउछि। नेतार आदेश को पालन करने द्वारा संविधान प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो ना। संविधान रे जो जिनस लिखा जाए सही अनुसार यदि देशर शासन और प्रशासन चली था केबेठू भारतवर्ष सुनार भारत होता। आपण देखुं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान पर्यंत जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयापूर्वक सब्सक्राइब करंतु। वो बेल आइकन निश्चित भाव दबातु। थैंक यू।